So it is my first day at CBSE and it is a wonderful feeling to come to Queen Global International School. So I would like to say a few things on overall development of a society and what is the role of education in it. If we really want a high class education or a fulfilling education for our family or for our children, there are three main pillars in this. The first pillar is, number one is the parents. The reason why I am saying parents is that a child spends around 220 days of an year in school, and that too only 6 hours. Remaining 18 hours a child is at home. And as we know, National Education Policy and other neuroscientific studies also say that 85% of a child's brain development happens by the age of 6, and by the age of 10, majority of your neurons are developed. So it is clear that in early years of life, it is very, very important that as parents you pay a huge amount of attention to what your child is doing. Since your child is most of the time at home, you have to spend time with your children. You can't just let off it to school and say that it is the responsibility of the school to teach your ward and you are there just to support the school. No, you are there to complement and supplement what is happening in school, and you are the first and the foremost responder for your child's education. You have to ensure as parent that your child in initial years learn the basic qualities of being an inquirer, of being a child who wants to learn, a child who learns manners at home. Initial years of when a child is in early ages, he or she picks up very fast. अगर आप उसको उस समय पर ये बोलेंगे कि आप अपने साथ वाले को देखो वो इतना अच्छा कर रहा है, शुरू में ही कंपटीशन की भावना बच्चे के अंदर डालेंगे या शुरू में ही बच्चे को डांटेंगे पीटेंगे, तो उसका बहुत बड़ा एक नेगेटिव असर बच्चे की साइकी पे होता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती सालों में बच्चे को हम मोटिवेट करें, बच्चे को एक अच्छा एक्टिव लर्नर बनाएं, एक्टिव इंक्वायरर बनाएं. वो जो चीज़ भी कर रहा है उसके अंदर हम सपोर्ट करें, जो गलत कर रहा है तो हम उसको प्यार से समझाएं. कोशिश करें कि वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस से लिमिटेड यूसेज करे, दूर रहे. आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चों को टीवीज़ में या फिर गैजेट्स के अंदर छोड़ देते हैं. We should regulate the use of devices in a positive manner to a child's overall development. Otherwise, sometimes there are a lot of negative effects of these devices also. So parents must spend at least 2 hours with their children, mother and father, discussing what is happening in their school, talking to them, reading them books, reading them what is happening in class. That has a very huge impact on children. एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय सिर्फ सरकारी नौकरियाँ थी. तो समाज के अंदर उस समय एक जोर था कि भाई एक दूसरे से compete करना है, लिमिटेड नौकरियाँ हैं, कैसे भी करके सरकारी नौकरी मिल जाए. 1990 के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ, लाइसेंस राज ख़त्म हुआ, तब पेरेंट्स का फोकस आया कि बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेजना है, MBA कराना है, MBBS अच्छी जगह से कराएं ताकि बच्चे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अच्छी नौकरियां पाएं, MNC में काम करें, अच्छा कमाएं. आज का टाइम जो है हमारे देश के अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है. देश के अंदर इतनी VC फंडिंग आ रही है, कोई नहीं सोच सकता था इस देश के अंदर 20 साल पहले कि हज़ार करोड़ की कंपनियां 25 से 30 साल के बच्चे खड़ी कर सकते हैं, जो हमारे देश के अंदर हो रहा है. इसीलिए एज पेरेंट्स आप अपने बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस भरें कि वो जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बने, और ये पॉसिबल है. शुरुआती सालों के अंदर अगर हम बच्चे के पैशन को आइडेंटिफाई करें, बच्चे के क्रिएटिविटी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें और हम मोटिवेट करें कि वो उस पर काम करे, वो उस चीज़ को अचीव कर सकता है. और इसके अंदर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. दूसरे की पिलर है स्कूल. मैं सभी टीचर्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस प्रोफेशन के अंदर हैं, डोंट कंसिडर इट एज अ जॉब, कंसिडर इट एज अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी. कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे आप ह्यूमन टू ह्यूमन इतना कांटेक्ट होता है या ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आप चेंजेस ला सकते हैं जो एज अ टीचर आप ला सकते हैं. एक अच्छा जब टीचर होता है वो
हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड होता है, उसके बच्चे उससे यही सारी क्वालिटी सीखते हैं। एक बच्चा अपने परिवार के अलावा सबसे ज़्यादा समय स्कूल में बिताता है, अपने टीचर के साथ बिताता है, और अगर एक टीचर अच्छा टीचर है तो वो क्वालिटीज़ उसका बच्चा भी एमुलेट करता है। और अगर एक टीचर हार्ड वर्किंग नहीं है या डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चे भी कहीं ना कहीं वही चीज़ें उससे सीखते हैं। और आप टीचिंग का जो जॉब कर रहे हैं उसको आप घड़ी की सुइयों से ना देखें कि मुझे 8 बजे आना है और 1-1:30 बजे जाना है। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, आप सभी बच्चों को अपना बच्चा माने और ऐसा समझे कि आप एक समाज सेवा कर रहे हैं इन बच्चों के जीवन के अंदर चेंजेस लाके। स्कूल का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। टीचर्स, पेरेंट्स, आपका जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो ऐसा बॉन्डिंग होना चाहिए कि जो भी बच्चे के साथ हो रहा है, ये 3 लोग ट्रायंगुलेशन मेथड में बच्चे के साथ मिलके इम्प्रूवमेंट करें। तीसरा जो की पिलर है बच्चों के लिए है वो है उनका पीयर्स। आजकल हम देखते हैं कई बच्चे बुलिंग करते हैं, कई बच्चे कंपैरिजन करते हैं, मेरे पास ये गाड़ी है तुम्हारे पास ये गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये गैजेट्स है तुम्हारे पास नहीं है। कंपैरिजन से कभी जीवन के अंदर खुशी नहीं मिलती है। अगर बच्चों को, आपको ये कहीं ना कहीं स्कूल को, समाज को ये बताना होगा कि प्लेजर और हैप्पीनेस में क्या फ़र्क है, सुविधा और सुख में क्या फ़र्क है। सुविधा आपको एसी भी दे सकता है, अगर आपको गर्मी लग रही है एसी में मिलेगी आपको। मैं यहाँ पर सोफे पे बैठा हूँ, आप शायद चेयर पे बैठे हैं, ये सुविधा का फ़र्क है। लेकिन सुख क्या है, वो आंतरिक सुख समझना होगा कि when a person goes deep inside, when a person realizes, when you help somebody else, then you get true happiness। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको बच्चों को सिखानी होंगी। और एज अ सोसाइटी अगर हम सारे लोग तीनों एलिमेंट मिलके काम करेंगे तो हम समाज के अंदर बहुत बड़ा डेवलपमेंट ला सकते हैं। मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्वीन ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल को, जो इतने नए नए इनिशिएटिव लेता रहता है बच्चों को एक्चुअल में ट्रूली इंटरनेशनल स्कूलिंग। इनका जो करिकुलम और पेडागॉजी है वो इस तरीके से है कि किस तरीके से बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करें। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने पीपल टीचर रेशियो पर भी फोकस किया हुआ है, ताकि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चे को एक साथ पढ़ाएं, लिमिटेड बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू सो मच।